Okay, so here we are. So now let's get back with our video and head over to the code part that you're having, right? Okay, so here we are. So first what you have to do, you have to write a function for precedence. So int precedence we are having character C. Okay, so in the character C, if C is equals to power. So let's return 3 because only 3 kind of operators we are having, right? If C is equals to multiply or C is equals to divide, then we have to do return 2. Else we know that else there will be only one case, but still let's write it out. अगर प्लस है या माइनस है, ठीक है, then what you have to do, return 1. Cool. So these are the 3 things that you have to keep in mind for precedence. Now what we will doing, we will be heading over to the main function. So let's name it infix string final only. Okay, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि अब मुझे सबसे पहले क्या करना है कि एक स्टैक बनानी है, character stack. Let's name it S. Now what you have to do, you have to also S, let's S be the final string. Okay, so for int I is equals to 0, I less than n, I plus plus, तो n भी हमें डिफाइन करना होगा. तो फाइनल डॉट साइज हमारे यहाँ पे n हो जाएगा. तो अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले हर कैरेक्टर, तो कैरेक्टर C इज इक्वल्स टू फाइनल आई. कूल. तो अब मेरे पास C में स्टोर्ड है. अब मुझे देखना है कि इफ़ जो C इज़ ग्रेटर देन, इफ़ C इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू A and C is less than equal to Z, whatever you say, right? Or C is greater than equal to A and C is less than equal to Z. ठीक है. In this condition what you are having is S plus is equals to C. तो मुझे क्या कहे, अगर मेरे ऑपरेंड है, अगर ए बी सी है, तब तो मुझे फाइनल स्ट्रिंग में ऐड कर देना है. ठीक है. अब अगर इफ else if C is equals to okay this kind of bracket, then what you have to do, you have to simply push it to the stack, right? मैंने स्टैक में पुश कर दिया. अब मुझे क्या करना है, ठीक है. अब यहाँ पे मेन चीज़ आएगी. अब यहाँ पे else if C is equals to क्लोजिंग ब्रैकेट अगर मेरे पास आ गया ना, यहाँ पे क्लोजिंग, तो यहाँ पे ओपनिंग आएगा. ठीक है. अब यहाँ पे मेरे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाता है. तो जब तक मुझे पॉप करना है, जब तक मेरे पास ओपनिंग ब्रैकेट मेरा नहीं आता है. ठीक है. तो यहाँ पे अपने को करना है कि वाइल एस डॉट टॉप इज नॉट is not equal to opening bracket. Cool. Till that point what you have to do, you have to add it to the final string S plus is equals to S dot top S dot pop. Cool. And now what you have to do at the end of this, you have to simply let me just delete it so that we can get it right. So and at the end of it you have to, what you have to do, you have to push C. ठीक है. else अब मुझे क्या करना है कि else कंडीशन में पॉप ऑल द एलिमेंट्स रिमेनिंग. ठीक है. तो अब जैसे else यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि मैंने क्या किया कि अभी तक अगर ऑपरेंड आ रहा है तो मैंने देख लिया, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, जो भी है सारे केसेस हमने इनकाउंटर कर लिए हैं.
अब हमारा क्या आता है कि अगर अभी भी स्टैक में कुछ बचा है, इफ़ नॉट एस डॉट एम्प्टी, राइट, सो व्हाट यू हैव टू डू, कैरेक्टर c इज इक्वल्स टू एस डॉट टॉप, s प्लस इज इक्वल्स टू c s डॉट पॉप, है ना, ये कर लिया, और उसके बाद एंड में return s, right? So this was it from my side. So I hope this video is helpful. So let's head over to the main thing and let's discuss it once again, and then we'll end this video. So we started with the must do coding question series infix to postfix. I explained that what is infix, what is postfix. We discussed the precedence, all the things that we're having. Then we went to that how precedence work, how the stack works, how we have discussed it previously in parenthesis checker. Then I explained that what the three things we will be encountering in this: operand, operator and parenthesis. Then we discussed the algorithm. First we have to traverse the script. अगर operand है तो उसको string में add कर दो, अगर opening bracket है तो stack में push कर दे जाओ। उसके बाद अगर operator है, अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है, तब मुझे क्या करना है कि ओपनिंग ब्रैकेट तक मुझे पॉप करते जाने हैं और उसको जो ऑपरेटर नया है उसको पुश कर देना है। फिर उसके बाद मुझे चेक करना है कि अगर स्टैक मेरी एम्प्टी नहीं है तो बचे हुए सारे एलिमेंट्स को। तो आई होप यू आर कंफर्टेबल विद प्रेसिडेंस ऑफ दिस डिफरेंट ऑपरेटर्स, बट इफ नॉट एन इशू, आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट हियर, राइट। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि पावर जो फंक्शन होता है उसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर उसके बाद यार मुझे 1 2 3 ही करके लिख लेना, 1 पावर के बाद हमारी होती है मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की। और फिर उसके बाद हमारे होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। Right. So the three things that we are having is power, multiplication, division, addition and subtraction. तो अब इसका यहाँ पे क्या काम आएगा? So we will be just keep it in mind. We will be dealing with it in few time, right? तो अब हमें क्या करना है? Suppose मुझे a प्लस बी दे रखा है इनफिक्स, तो इसका पोस्ट फिक्स होगा ए बी प्लस, ठीक है। तो ये हमें कैसे करना है? तो पोस्ट फिक्स, देयर इज नो क्वेश्चन कि पोस्ट फिक्स ऐसा क्यों होता है। इट इज़ डिफाइंड इन सच अ वे ताकि कंप्यूटर सिस्टम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, राइट। तो अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि ए बी प्लस क्या है, पोस्ट फिक्स क्यों होता है, कैसे होता है, बट हाउ टू डील विद दिस, है ना। तो हाउ टू डील विद दिस वी विल बी सीइंग हियर ओनली। तो ए बी प्लस हमारे पास यहाँ वो आ चुका है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि अब जैसे मैं स्टैक में डालता हूँ, ठीक है। तो द थिंग इज़ दैट अगर वो एक ऑपरेंड है, मतलब ए बी सी एक्स वाई जेड, अगर ये चीज़ आ रही है तो मैं इसको फाइनल स्ट्रिंग में ऐड कर दूंगा। जैसे ए ऐड कर दिया, बी ऐड कर दिया। अब क्या केस आएगा? अब मेरे पास दो केस आएंगे, ठीक है। तो वाइल ट्रैवर्सिंग द स्ट्रिंग्स मेरे पास एक केस तो आएगा कि या तो मेरे पास ऑपरेंड हो, या तो मेरे पास ऑपरेंड हो मतलब ए बी सी, या मेरे पास ऑपरेटर हो ताकि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट, और या मेरे पास न ऑपरेंड हो न ऑपरेटर हो और मेरे पास हो वो पैरेंथेसिस। तो अब ये तीन चीज़ों का मुझे चेक करना है। पैरेंथेसिस कैसे? जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था, उसमें भी आप पैरेंथेसिस की हेल्प देख सकते हो कि क्या हेल्प आ रही थी। जैसे ए प्लस बी माइनस 6 into 3, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट हो गया? दिस इज सिंपली द पार्ट ऑफ parenthesis that we having here. Cool. So this is the part of the parenthesis that we having. ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा कि जैसे अगर मेरे पास ऑपरेंड आ रहा है तो उसको मैं फाइनल प्लस इज इक्वल्स टू ऑपरेंड कर दूंगा। अगर मेरे पास ऑपरेंड आ रहा है तो मैं फाइनल प्लस इज इक्वल्स टू ऑपरेंड कर दूंगा, ठीक है। अगर मेरे पास ऑपरेटर आ रहा है, ठीक है ना। अगर मेरे पास ऑपरेटर है तो वील सी। अगर मेरे पास पैरेंथेसिस आ रहा है तो मैं स्टैक में पुश कर दूंगा, ठीक है। अगर मेरे पास पैरेंथेसिस आ रहा है तो मैं स्टैक में पुश कर दूंगा, ठीक है। और अगर ऑपरेटर आ रहा है तो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि इफ़ यू हैविंग ऑपरेटर देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेक द प्रेसिडेंस, ठीक है। अगर जो ऑपरेटर आ रहा है उसकी प्रेसिडेंस जो मेरे स्टैक के टॉप एलिमेंट है उससे कम या बराबर है, तब तो मैं स्टैक में पुश कर दूंगा ऑपरेटर, ठीक है।
और अगर नहीं है तो जब तक उसकी नहीं होती मैं पॉप करता जाऊँगा, पॉप करता जाऊँगा, पॉप करता जाऊँगा, और फिर उसके बाद एंड में जो नया एलिमेंट है उसको पुश कर दूँगा। दिस सिंपली मीन्स कि स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट है, जो ऑपरेटर रहेगा, उसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होगी। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, दिस इज़ द थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड, राइट। तो इसको बात ध्यान में रखते हुए तो हमारी एल्गोरिथम अब कैसी बन रही है, ये व्हाट यू हैव टू डू, traverse the string, right? So after traversing, what you have to do, if operand, then what you have to do, if there is operand, then add to final string. हाँ कर दे बंद भली वो वाली, है ना। If operand, then we have to do this. Now if we are having opening bracket, right, so if the opening bracket is there, then what you have to do, if the opening bracket is there, then what we can do, we can simply push it to the stack, right. And if operator we are having, then there's a good thing that in the case of operator we have to check precedence. If precedence of top character is greater than or equal to, right, is greater than or equal to the new precedence that we are having, right. So if it is that, then there is no issue, we can simply add it to the stack or so as a push. Else we have to pop till the condition is not being satisfied. तो मुझे जब तक पॉप करना है जब तक मेरे टॉप एलिमेंट की जो प्रेसिडेंस है वो सबसे हाईएस्ट नहीं होती, ठीक है। दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो जब तक मेरी जो टॉप एलिमेंट है उसकी प्रेसिडेंस सबसे हाईएस्ट नहीं है, जब तक मुझे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, जब पॉप करते जाना है, ठीक है। अब ये क्या होगा, मैंने एक बार ट्रैवर्स कर लिया है, उसके बाद अगर स्टैक में कुछ भी बच रहा है ये ख़त्म होने के बाद, देन सिंपली एड इट टू द फाइनल स्ट्रिंग and return it to the answer. So I hope it was helpful. So this was it for this video. In the next video we will be discussing about the code part, right? So thanks for watching.